Hello everyone, in this video we are going to study about the biosynthesis of acetylcholine. Now the acetylcholine, as we all are aware, it is a direct acting parasympathomimetic drug. Okay, now what are parasympathomimetic drugs? These are the class of drugs which mimic the action of parasympathetic nervous system. This is also known as cholinergic drugs. Okay, now acetylcholine here, as I have mentioned, it is also known as acetic acid of choline. Okay, it is synthesized by the cholinergic neurons. As these are the cholinergic type of drugs, it is synthesized by cholinergic neurons. Now initially it is synthesized into the liver by the reaction between ethanolamine and L-serine. Here L stands for your levorotatory. ठीक है, तो L-serine. Now there is a reaction in the liver, synthesis in the liver of ethanolamine and L-serine reaction takes place, which is taken up into the nerve endings of the cholinergic transport system. Okay, it is taken up by the nerve endings by the cholinergic transport system. This acetylcholine now is synthesized by choline and acetyl-CoA in the presence of the enzyme acetylcholine transferases. ओके तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो रिएक्शन है कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स में हो रही है, जहाँ ये लीवर में सिंथेसाइज हो रहा है। द पहले ये वाला रिएक्शन हो रहा है between the ethanol amine and L-serine, which is then taken up into the nerve endings by the cholinergic transport system. और फिर ये जो है इथेनॉल अमाइन और L-serine से रिएक्शन होने के बाद कोलिन फॉर्म हो रहा है. ओके, सो द सेकेंड स्टेप यहाँ पर है, कोलिन फॉर्म हो रहा है और एसिटाइल CoA which is in the okay with the help of the enzyme acetyl CoA transferase. So this is the enzyme used. Okay, now let's see the reaction. Let's understand about the reaction. Okay, so here I hope you all can see, यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने L-serine लिए है. What is L-serine written as? यहाँ पर if you all can see, it is OH, CH2, CH को NH2 and CO. So this is your L-serine. This L-serine is ट्रांसफॉर्म टू इथेनॉलामाइन. अगर तुम लोग देखोगे क्या डिफरेंस है, बस ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो निकल गया. सो इट इज सेरीन डी कार्बोक्सिलेज हो गया, सो विच इज फॉर्मिंग एन इथेनॉल अमाइन. राइट, यू कैन सी यहाँ पर OH है, CH2 है, CH2 है, ये NH2 जो है वो यहाँ पर आ गया है, कार्बोक्सिलेज निकल गया. सो नाउ in the presence of S-adenosyl methionine transferase क्या हो रहा है, the change, this H जो था H2 is replaced by the 3 methyl groups. So these 3 methyl groups are a change which is forming a choline, Okay, I'll just clear the screen for you for better understanding. So let's see here, यहाँ पर पहले क्या हुआ था, L-serine है, yes, which is having NH2 group here and carboxylase group here. ये carboxylase serine carboxylase enzyme की वजह से निकल रहा है. So you can see this amine group is attached here and बाकी it is forming ethanol amine same. उसके बाद methionine group add कर रहे हो तो ये 3 methyl groups आ रहे हैं which is forming nothing but a choline. अब this choline in the presence of acetyl coenzyme A is forming your acetylcholine and CoAsh. ठीक है, ये कोलिन और एसिटाइल को एंजाइम रिएक्ट करेंगे सेकेंड स्टेप में, और क्या होगा, एसिटाइलकोलिन ट्रांसफरेसिस के प्रेजेंट पे इट विल फॉर्म एसिटाइलकोलिन. ठीक है, सो इफ आई टेल यू ऑल कि सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले लीवर में सीरीन और इथेनॉल अमाइन का रिएक्शन हो रहा है.
जिसके मदद से एस एडिनोसाइल मिथेनोन ट्रांसफरेज से कोलिन बन रहा है। फिर सेकेंड स्टेप में वो कोलिन और एसिटाइल को एंजाइम जो है वो एसिटाइलाइन को ट्रांसफरेजेस, जैसे कि आई सेड हियर इट इज एन एंजाइम, so it is in the presence of this is forming your acetylcholine and CoAsh. Now let's study about the storage and release. Now whatever the acetylcholine was synthesized is now stored into the storage vesicles, okay, by the vesicular acetylcholine transporter के मदद से क्या हो रहा है, it is stored in the storage vesicles and there are 1000 to 5000 molecules of acetylcholine which is protected by the hydrolysis. Alright, now let's study about the release. यानी स्टोरेज में सिंपली ये बताया है कि जो भी हम लोग ने बायोसिंथेसिस करके एसिटाइलकोलिन सिंथेसाइज किया वो स्टोरेज वेसिकल में स्टोर्ड है और 1000 से 50,000 मॉलिक्यूल्स रहते हैं विच इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट इज हाइड्रोलिसिस. Let's understand about the release. अब रिलीज क्या है, ठीक है. रिलीज में क्या होता है, रिलीज इज नथिंग बट when this acetylcholine is stored into the storage granules under the influence of the action potential and voltage gated calcium channel ion का outflux, there is a stimulation. ठीक है, अब ये बहुत क्रूशियल स्टेप है. सबसे पहले क्या हो रहा है, ये स्टिमुलेशन हो रहा है, देन एक्टिवेशन ऑफ नर्व मेम्ब्रेन, कैल्शियम चैनल आयन वोल्टेज गेट में एंटर हो रहा है, एक्टिवेट्स द प्रोटीन काइनेज दैट फॉस्फोराइलेट्स द साइनैप्स, वेसिकल्स फ्यूज विद द प्री साइनैप्टिक मेम्ब्रेन, वेसिकल डिस्चार्ज their content acetylcholine which binds to the receptor to generate the action potential. So I'll just explain you diagrammatically. Suppose ये मेरा प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन है, ये मेरा पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन है. अब जो मेरा प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन है उस पर यहाँ पर मुझे पता है मेरे रिसेप्टर्स होते हैं. यस, तो ये मेरे रिसेप्टर्स है. I'll say M receptor and N receptor. M is your muscarinic and N is your nicotinic. अब ये हमारा यहाँ पर लीवर था, यहाँ पर क्या हुआ था, सेरीन और इथेनॉल अमाइन का रिएक्शन हुआ, कोलिन फॉर्म हुआ था हमारा, कोलिन से हमारा बना था कोलिन और फिर हम लोग ने एसिटाइल को एंजाइम की मदद से एसिटाइल कोलिन जो है ये सिंथेसाइज किया. ये स्टोरेज वेसिकल्स में स्टोर था जिसको हम लोग वेसिकुलर एसिटाइलकोलिन ट्रांसपोर्ट वैचिट बोलते हैं. वो स्टोर था 5000 टू ऐसे 5000 to 1000 मॉलिक्यूल्स जो है ये प्री साइनैप्टिक वेसिकल्स है, प्री साइनैप्टिक वेसिकल्स में स्टोर्ड होते हैं. तो सबसे पहले क्या होता है कि इनका एक्टिव ये जो स्टोर्ड होते हैं ये ना रिलीज होना, और इसमें सब में एसिटाइलकोलिन है, ठीक है. तो ये क्या हो जाता है, रिलीज होना चालू हो जाता है. तो ये जब रिलीज होता है, ये रिलीज होते हैं बाय द एक्शन पोटेंशियल एंड वोल्टेज गेटेड कैल्शियम, यानी कैल्शियम का जो है Ca2 सो यहाँ पर ना कैल्शियम का जो है इनफ्लक्स हो रहा है, कैल्शियम 2+ का इनफ्लक्स हो रहा है और एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने की वजह से ये जो स्टोरेज वेसिकल्स है ये क्या कर रहे हैं, अपना एसिटाइलकोलिन जो है ये रिलीज कर रहे हैं. अब जो तो पहले हमारे पास स्टिमुलस आया, एक मैसेज आया. स्टिमुलस के बाद क्या हुआ, देयर वाज स्टिमुलस के बाद हमारे को आया मैसेज कि यू हैव टू एक्टिवेट द नर्व मेम्ब्रेन. तो ये जो नर्व मेम्ब्रेन्स थे, स्टिमुलेशन आया तो नर्व मेम्ब्रेन्स जो है हमारे ये एक्टिवेट हो गए. उसके बाद कैल्शियम चैनल एंटर हो गए वोल्टेज गेटेड चैनल में. अब ये क्या करता है, ड्यू टू दिस इट एक्टिवेट्स द protein kinase, it activates the protein kinase that phosphorylates the synapse. और अब जब ये प्रोटीन काइनेज से फॉस्फोराइलेट का साइनैप्स उसको पहुंचेगा, ओके, एक्टिवेट करेगा, तब क्या होता है, ये जो वेसिकल्स है ये जाके ना साइनैप्टिक वेसिकल्स जो है ये जाके ऐसे प्री साइनैप्टिक मेम्ब्रेन को क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, और जितने भी उसका एसिटाइल कोलिन है या
जो भी उसका कंटेंट है वो रिलीज हो जाता है और वो बाइंड करते हैं टू द रिसेप्टर्स। और जब वो बाइंड करते हैं रिसेप्टर्स को, तो जब भी जो भी हमारा एक्शन पोटेंशियल रिस्पॉन्स रहता है वो हम लोग को मिल जाता है। सो सिंपली आई वांट टू से इज कि acetylcholine is released from the storage granules under the influence of action potential and voltage gated channels. Stimulation होता है, activation of nerve membrane, calcium channel enter voltage gated channel, activates the protein kinase that phosphorylates the synapse. Vesicles fuse with presynaptic membrane. Vesicles discharge their content acetylcholine and gives binds to the receptor muscarinic acid or nicotinic receptors, which gives action potential. Now here I have explained in the diagrammatic which I had shown you there. So you can see. First let's understand that this table. ओके दिस डायग्राम। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, ये मेरे दो रिसेप्टर्स है R1 एंड R2, जिससे कि आई एम मेंशनिंग दिस एज M and N, मस्किनर्निक एंड रिसेप्टर्स एंड निकोटिनिक रिसेप्टर्स। ओके, अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, ये हमारा सपोज पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, सॉरी दिस इज प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है यहाँ पर जो है, ये तो हमारा पोस्ट साइनेप्टिक हो गया जिस पे रिसेप्टर्स है R1 R2 मस्केरिन, ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो जब मस्केरिन यहाँ से क्या हो रहा था, कैल्शियम का इन्फ्लक्स हो रहा था, तो कैल्शियम का इन्फ्लक्स हो रहा था बराबर। और सबसे पहले क्या हुआ, एसिटाइल कोलिन और एसिटेट की मदद से इन द प्रेजेंस ऑफ कोलिन ईस्टरेजेस, ओके यहाँ पर जो है ये कैटाबोलिज्म हो रहा था। तो यहाँ से देखो, यहाँ से पहले क्या हुआ, हमारा लीवर है, ये लीवर से कोलिन आया, फिर वो एक्ट, जैसे कि मैंने बोला था सबसे पहले यहाँ पर क्या हो रहा था, स्टिमुलेशन होने के बाद क्या हो रहा था, स्टिमुलेशन होने के बाद देयर वाज एक्टिवेशन ऑफ कैल्शियम आयंस फ्रॉम द वोल्टेज गेटेड। पहले क्या हो रहा था, स्टिमुलेशन हो रहा था फ्रॉम, और फिर वो जो है नर्व एंडिंग, एक्टिवेशन ऑफ नर्व एंडिंग के बाद जो हमारे कैल्शियम चैनल्स है वो अंदर इनफ्लक्स आ रहा था कैल्शियम चैनल का। तो जब वो कैल्शियम चैनल्स अंदर इनफ्लक्स दे रहे थे, तो क्या हो रहा था, यहाँ पर फॉस्फो जो है प्रोटीन काइनेज जो है फॉस्फोराइलेट कर रहा था फॉस्फोक्लोरीन को इन द माइटोकॉन्ड्रिया, विच गिव्स यू पायरुवेट एंड ग्लाइकोलिसिस। यहाँ पर थोड़ा बहुत क्रेब साइकिल में समझा है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एसिटाइल कोए, जिसकी वजह से क्या हुआ था, कोलिन और एसिटाइल कोए की वजह से हमारा एसिटाइल कोलिन बना था। और यहाँ पर एसिटाइल कोलिन जो है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटाइल कोलिन ईस्टरेजेस, क्या है, कोलिन और ईस्टरबन। यहाँ पर इन द कैटाबॉलिज्म आई हैव मेड द डायग्राम वेरी क्लियर, सो वो समझो तो तुम्हारे को ऊपर का डायग्राम समझेगा। जस्ट क्लियर द annotations. Okay. So yeah, if you see here, यहाँ पर क्या हो रहा है, लीवर में पहले हम लोग ने बोला कि सीरीन और इथेनॉल अमाइन बना है, जिसके वजह से कोलिन सिंथेसाइज हो रहा है। वो कोलिन जो है एसिटाइल कोलिन को ए से रिएक्ट कर रहा है, तो एसिटाइल कोलिन बन रहा है विच इज स्टोर्ड इनटू द साइनेप्टिक वेसिकल्स। फिर क्या हो रहा है, फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। फॉस्फोराइलेशन के बाद साइनेप्टिक वेसिकल्स जो है, एक टाइम आता है कि सारे नर्व मेंबर्स को क्या हो जाते हैं, बाइंड करते हैं। फिर एसिटाइल कोलिन जो है वो रिलीज करते हैं, वो जाके बाइंड करता है टू द मस्कैरिनिक एंड द निकोटिनिक रिसेप्टर्स टू गिव द एक्शन पोटेंशियल। और वही टाइम पे एक्शन टर्मिनेट करना होगा, हाइड्रोलिसिस से होता है। तो दो इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स बनते हैं, कोलिन और एसिटिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटाइलकोलिन ईस्टरेजेस। ठीक है, दिस इज द कैटाबॉलिज्म एक्सप्लेन। और फिर क्या होता है, ये जो रिसेप्टर्स जब बाइंड करेगी तो वो एक्शन रिस्पॉन्स देगी और टर्मिनेट करना पड़ेगा इफेक्ट एक्शन को, तो वो कैटाबॉलिज्म से होता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। इफ एनी डाउट्स प्लीज कमेंट डाउन इन द वीडियो। थैंक यू।